Good morning, friends. Today we are going to continue with Unit 4, that is an unpaid seller. Yesterday we have covered with rights of unpaid seller, right against the goods and a right against the buyer. Right against the goods, two possibilities: when the ownership is transferred to the buyer or when ownership is not transferred to the buyer. In case where the ownership is transferred to the buyer, unpaid seller will have three rights. One is right of lien, second is right of stoppage of goods in transit, and the last one is right of resale of goods. When the ownership is not transferred, the unpaid seller will have a right to withhold the goods and other rights of the seller. Rights against the buyer: suit for recovering the price of the goods, suit for damages, suit for repudiation of the contract, and suit for interest. This we have covered. Today we are going to cover with rights of the buyer against the seller. That is, if the breach has been done by the seller. That means if seller fails to perform the contract, what are the rights available with the buyer? Previous lecture we have covered with, if the right of lien is a loss, the unpaid seller will have a right to exercise the right of stoppage of goods in transit and ultimately right of reselling the goods for the purpose of recovery of the price. These rights will be generally used where the unpaid seller has kept the condition that amount has to be first paid and then you can take the possession of the goods. If these rights cannot be used, then the unpaid seller will have a right against the buyer. That means where the seller is ready to give the delivery of the goods, however where buyer doesn't want to take the delivery of the goods, that means there is an attempted performance from the side of the seller. In that case, we have seen that seller will not wait for a long time. He is going to cancel the contract and he will try to receive the price of the goods. That is suit for price. That is, if initial rights of lien, right of stoppage is not available, he is going to exercise a right against the buyer for the purpose of recovering the price and the compensation. Today we are going to cover with, if the breach is done by the seller, that means defaulting party is a seller. In that case, what the buyer rights are, we are going to cover in the today's lecture. And the next one is auction sale. What is an auction sale and what happens in the auction sale, we are going to cover that too. On your screen you can refer that. You have right of the party in the case of a breach of the contract. Right of seller against the buyer, this we have already covered in the previous lecture, that is recovery of the price, filing a suit for recovering the damages, recovering the interest, and filing a suit for cancellation of the contract. This we have already covered. Rescission, resign the contract, that is cancellation of the contract. Suit for recovery of price, suit for damages, and suit for interest. This we have covered in the previous lecture. Today we are going to refer to the rights of the buyer against the seller. What are the rights of the buyer against the seller? That means if the seller is a defaulting party, then what are the rights available with the buyer? We will see all this. Damages for non-delivery. Seller is not giving the delivery of the goods after entering into the contract. What are the rights available with the buyer? Suit for specific performance. This specific performance word has been encountered in Indian Contract Act also. Indian Contract Act में we have seen that के अगर एग्रीव पार्टी को कॉम्पेंसेशन से ज्यादा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है तो इन दैट केस वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये चाहिए
कि डिफॉल्टिंग पार्टी उसका प्रॉमिस पूरा करे rather than giving me any kind of a compensation. That means if that particular goods is very much important to the buyer, in that case buyer will request the कोर्ट दैट के आप सेलर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी जो उसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस पूरा करने का ऑर्डर दे. देन देयर इज अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द केस ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज. There are certain implied warranties, there are certain express warranty. Warranty is nothing but collateral to the main purpose of the contract, where the buyer is not entitled to cancel the contract, but he is entitled to recover the damages in case of breach of warranty. Then suit for breach of condition, same thing. In this case, condition is essential to the main purpose of the contract, and if there is a breach as regards to this, then the buyer will be entitled to file a suit for the cancellation of the contract, refund of the amount already paid, and claim the damages. Then he also has a right to cancel the contract and recovery of the interest. In the same manner, how the seller is entitled to recover the interest from the buyer in case of breach by the buyer. In the similar fashion, if the buyer has given any advance to the seller and seller has not performed his promise, then the buyer will also be entitled to recover the interest from the seller. We will see all this in detail. Now what is the first one? Damages for non-delivery. Non-delivery in the sense कि seller goods की delivery नहीं दे रहा है. तो क्या बोला है देखिए, where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. Buyer और seller के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सेलर ने बोला है कि ये पर्टिकुलर डेट पे मैं गुड्स सप्लाई करूंगा, और फिर बाद में सेलर रिफ्यूज करता है वो गुड्स की डिलीवरी देने से. तो buyer will be entitled to recover the damages from the seller. What it says? A shoe manufacturer agreed to sell 100 pairs of shoes to B at the rate of 1050 per share. That means total transaction is of 1,05,000. A knew that the B wanted the shoes for the purpose of further reselling them to C at the rate of 1100 per pair. That means here the buyer has already informed the seller what is his purpose for purchasing those shoes. He already told the seller that वो आगे वो goods को sell करने वाला है और per shoes he is going to make a profit of ₹50. For 100 shoes he is going to make a total profit of ₹5,000. This is a contract entered. That means there is a pre-information given by the buyer to the seller. Pre-notice, you can say that. On the due date of delivery, A failed to deliver the shoes to B. Now seller on the delivery date, that means there is an actual breach. डेट पे आके सामने वाले पार्टी ने सेलर ने रिफ्यूज कर दिया गुड्स की डिलीवरी देने से. डैमेजेस के केस में वी हैव सीन दैट डैमेजेस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. और ब्रीच के केस में वी हैव सीन दैट देयर इज एन एक्चुअल ब्रीच एंड देयर इज एन एंटीसिपेटेड ब्रीच. अगर ड्यू डेट पे आके सामने वाला पार्टी अपने परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर देता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्चुअल ब्रीच. यहाँ पे भी सेलर ने क्या किया, ड्यू डेट पे रिफ्यूज कर दिया गुड्स देने से. तो यह द एग्रीव पार्टी, एंड इन दिस एग्जांपल हु इज एन एग्रीव पार्टी, बायर इज एन एग्रीव पार्टी. बायर सेलर से डैमेजेस रिकवर कर सकता है. यहाँ पे प्री इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी है. दैट मीन्स ऑलरेडी बायर ने सेलर को इन्फॉर्म किया था कि वो 50 रुपीज पर प्रॉफिट आगे कमाने वाला है, इसलिए सेलर को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि आपको गुड्स सप्लाई करना जरूरी है. तो यहाँ पे he is entitled to recover the damages of ₹50 multiplied by 100 pairs of shoes, that is 5,000 rupees. In consequences, B could not perform his contract with C for the supply of 100 pairs of shoes. सेलर ने बायर को गुड्स नहीं दिए, तो बायर was not able to perform his promise against the second buyer. In this case, B can recover the damages from A
B is a buyer, A is a seller. B can recover the damages from A at the rate of rupees 50 per pair. Total damages that will be recovered will be 50 multiplied by 100 pair, that is rupees 5,000. Suit for specific performance. What is the second remedy available with the buyer against the seller? Section 58 के specific performance. यहाँ पे goods are of most important to the buyer. It can be like that के goods may not be available with the other seller. So in that case, the buyer will request the court that order the seller to carry out his promise. That means order the seller के वो अपना promise पूरा करे. That will be called as a specific performance. Here I have given you the example के मैं एक फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसमें मुझे मशीनरी चाहिए, जो मशीनरी का ऑर्डर मैंने एक पर्टिकुलर सेलर को दिया है और वो मशीनरी वो सेलर के पास ही अवेलेबल है. फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 1 CR का हो गया, 1 करोड़ का हो गया एंड मशीनरी इज वर्थ रुपीज 25 lakhs. दैट मशीनरी इज अवेलेबल ओनली विद द वन पर्टिकुलर सेलर जिसको मैंने ऑर्डर दिया है. सेलर ने रिफ्यूज कर दिया मशीनरी देने के लिए, तो यह I might have purchased that particular machine from the other seller and recovered the damages from the first seller. मगर ये वाली मशीन स्पेशल मशीन है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेलर के पास अवेलेबल है. इन दिस केस मैं ऑलरेडी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर चुका हूँ और अपना 1 लाख रुपए उसमें 1 करोड़ रुपए अपना इन्वेस्ट कर चुका हूँ. तो यह आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉम्पेंसेशन वैल्यू. हियर आई वांट दैट कि वो सेलर शुड सप्लाई द मशीन, क्योंकि अगर वो मशीन सप्लाई नहीं करता है तो आई विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट माई फैक्ट्री. और मैंने लोन लेके वो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया है, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा. इसीलिए यहाँ पे मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर दैट सेलर टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस. एंड व्हाट वाज द प्रॉमिस? टू सप्लाई द मशीन. दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. Where the seller commits a breach of the contract of sale, the buyer can appeal to the court for specific performance. The court can order for specific performance only when the goods are uncertain and specific. Goods are uncertain and specific यानी एक specific quality का एक specific है जो मार्केट में उसके जैसा goods available नहीं है. A agreed to sell a rare painting of Mughal. Rare painting, that means it's not available anywhere else. Rare painting of Mughal period to B, but on the due date of delivery, A refused to sell the same. In this case, B may file a suit against the A for obtaining an order from the court to compel A to perform the contract, that is to deliver the painting to B at an agreed price. That means such kind of a request can be entertained by the court only when the court finds that whatever goods ordered by the buyer to the seller are rare. They are not available elsewhere in the market, and in that circumstances the court is aware that if such goods are not supplied, then the buyer will incur a heavy loss. Buyer may become an insolvent if this particular seller fails to perform his promise. तो ये सब चीजें दायरे में लेके they will see to it all this condition and the court will order the seller to carry out his promise. सेलर को कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करो. कॉम्पेंसेशन में सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है. आपने जो प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि टू सप्लाई द रेयर पेंटिंग. इन माय एग्जांपल कि मशीनरी देने का वादा किया था जो मशीनरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर देगा उस सेलर को कि आप आपका प्रॉमिस पूरा करो. दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. Next one is suit for breach of warranty. This we have already covered in conditions and warranty section 59. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सेलर वारंटी का ब्रीच करता है, in that circumstances buyer is entitled to claim the damages. यानी सेलर ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट खराब हो जाता है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, तो सेलर ने प्रॉमिस किया है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर करके देगा, और अगर रिपेयर नहीं होता है तो फिर उसको एक्सचेंज करके देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पार्ट खराब हो गया है और अगर सेलर रिफ्यूज करता है
then it will be called as a breach. In that case, buyer will be entitled to recover the damages. वो स्पेसिफिक पार्ट वो कहीं और से रिपेयर करवा लेगा और उसका खर्चा सेलर से रहेगा, या फिर वो पार्ट अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो फिर बायर उस स्पेसिफिक पार्ट को एक्सचेंज करेगा कहीं और से मार्केट से, और उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो सेलर से रिकवर करेगा. अब इस केस में क्या बोला है कि अगर सेलर देरी करता है रिपेयर करने के लिए, या फिर गुड्स तो अपने कब्जे में ले लेता है और बोलता है कि मैं रिपेयर करके दूंगा लेकिन रिपेयर नहीं कर रहा है, तो वो जो लॉस ऑफ टाइम होगा जिसके वजह से बायर का कोई नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स अगर वो मशीन टाइम पे रिपेयर हो जाती थी तो वो अपना प्रोडक्शन चालू कर सकता था, लेकिन टाइम पे रिपेयर नहीं किया तो उसका काम अटक गया, वो काम नहीं कर पाया. तो वो जो भी जितने दिन का लॉस होगा, जितने दिन का सेल्स का लॉस होगा, प्रॉफिट का लॉस होगा, या फिर उसने देरी से करके दिया तो वो पर्टिकुलर गुड जो टाइम पे वो बना के मार्केट में सीजन में सेल कर सकता था नहीं कर पाया और बाद में जाके उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, तो वो डिमिन्यूशन इन द वैल्यू का भी लॉस in the form of damages for breach of warranty can be recovered from the seller, defaulting party. What it says, where there is a breach of warranty on the part of the seller, or where the buyer elect to treat the breach of condition as the breach of warranty, the buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of breach of warranty, but he may set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the price. That means देरी से करके देने के वजह से क्या हुआ कि जो गुड्स वो बनाने वाला था उसमें डिक्रीज हो गया वैल्यू, तो जितना भी प्राइस डिक्लाइन होगा that decline can be recovered in the form of a damages from the seller, or sue the seller for damages for breach of warranty. अगर वो नहीं करके देता है तो उस केस के अंदर buyer will be entitled to recover the damages value, और जो भी खर्चा हुआ वो वैल्यू with the help of court of law. That means buyer is entitled to file a suit against the seller for breach of warranty. Then repudiation of contract before the due date. कॉन्ट्रैक्ट को सेलर ने ड्यू डेट आने से पहले कैंसिल कर दिया, दैट इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच. ड्यू डेट पे कैंसिल किया तो दैट इज एन एक्चुअल ब्रीच व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ इन दिस केस सेक्शन 60 सेज दैट कि सेलर ने एक ड्यू डेट को प्रॉमिस किया था कि फॉर एग्जांपल 31 अगस्त को मैं गुड्स की डिलीवरी दूंगा. टुडे इज 19 अगस्त. 19 अगस्त को फोन करके बोल दिया कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा. तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच. उस केस में भी क्या रूल है कि बायर इज एंटाइटल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, या फिर वो ड्यू डेट तक वेट करे और ड्यू डेट पे एक और चांस दे सेलर को कि वो उसका प्रॉमिस पूरा करे. और फिर भी अगर सेलर ड्यू डेट पे प्रॉमिस पूरा नहीं करता है तो देन ही इज एंटाइटल्ड, बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस, एंड अगेन द डैमेजेस विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. व्हाट इट सेज, वेयर आइदर पार्टी to a contract of sale repudiate the contract before the date of delivery, the other may either treat the contract, other may in this case other is buyer, may treat the contract as subsisting. That means still the contract is not cancelled, he is going to wait up to the due date and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as cancelled immediately, that is rescinded, and sue for damages for the breach. In both the cases he is entitled to claim the damages. लेकिन अगर ड्यू डेट तक वेट करता है तो बायर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन द मीनवाइल कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का ना आए जिसमें ऐसा बता दिया जाए कि ये गुड अब आप सेल नहीं कर सकते हो, सेलर बेच नहीं सकता है. तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और उस केस में द एग्रीव पार्टी दैट इज अ बायर कैन नॉट क्लेम अ डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी दैट इज द सेलर, क्योंकि लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, वो गुड्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है. इसीलिए सेलर स्टैंड लेगा कि मैं वो गुड्स सप्लाई नहीं करूंगा.
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है एंटिसिपेटरी ब्रीच में कि बायर इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, या फिर वो ड्यू डेट तक वेट करेगा और उस डेट पे कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगा। लेकिन ऐसा करने से इसमें हो सकता है कि बायर का नुकसान भी हो जाए। लास्ट वन इज सूट फॉर डैमेजेस। In this case, aggrieved party, that is a buyer, is also entitled to recover the interest from the seller in the same manner। जिस तरीके से सेलर बायर से इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है, उसी तरह बायर भी सेलर से इंटरेस्ट रिकवर कर सकता है। अगर बायर ने कोई एडवांस सेलर को दिया है और पैसा सेलर ने यूज कर लिया और बाद में सेलर के परफॉर्मेंस की बारी आई, यानी गुड्स की डिलीवरी देने की बारी आई, तो सेलर ने गुड्स की डिलीवरी देने से इनकार कर दिया और फॉर सम अदर रीजन seller has utilized the money of the buyer and contract has been cancelled. In that circumstances, buyer is entitled to recover the interest from the seller. What it says: nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover the interest or special damages in any case whereby law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has failed. Consideration of it is in the sense, अगर सेलर ने गुड्स सप्लाई किए तो बायर ने पैसा नहीं दिया है, तो सेलर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द इंटरेस्ट। या फिर बायर ने पैसा दे चुका है एडवांस में लेकिन सेलर ने गुड्स सप्लाई नहीं किया, तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द इंटरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर ऐसा स्टार्टिंग में कोई डिसाइडेड नहीं है कि इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उस केस में कोर्ट इंटरफियर करेगा। कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक फिट on the amount of price to the buyer in a suit by him for the refund of the price in the case of breach of contract on the part of the seller from the date on which the payment was made। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही डिसाइडेड है कि ये रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आइदर ऑफ द पार्टी जिसने डिफॉल्ट किया है वो इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन अगर प्री डिसाइडेड नहीं है तो फिर कोर्ट हेल्प करेगा एंड कोर्ट डिसाइड करेगा। इस केस में अगर सेलर ने ब्रीच किया है तो कोर्ट डिसीजन देगा कि ये रेट से इंटरेस्ट पे करो। सेलर को ऑर्डर देगा कि एट दिस रेट यू शुड पे द इंटरेस्ट टू द बायर एंड फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस गिवन बाय द बायर टू द सेलर। Now these are some of the examples, just go through that. Next topic of study is an auction sale. Now this is your last topic under this. Auction sale क्या होता है? Auction sale, you may be aware with, you might have seen n number of auctions in movies. IPL is an auction जहाँ पे players का auction होता है, या फिर you can see to it के बैंक किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है because that borrower was not able to pay the loan, repay the loan, तो वहां पे ऑक्शन होता है। ऑक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया जाता है और वहां पे जो ऑक्शन करना है, जो चीज को सेल करना है, देयर में बी आइदर वन आइटम और देयर में बी एन नंबर ऑफ आइटम। एक पर्टिकुलर पर्सन उसका ऑक्शन में सामने वाले लोगों से ऑफर लेता है और जो पर्टिकुलर वो ऑफर को आप क्या बोलते हो, बिडिंग, और जिसका बिडिंग हाईएस्ट होता है उसको वो चीज को सेल करता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द केस ऑफ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे अपन ने देखा था कि सामने वाला ऑफर इन द फॉर्म ऑफ बिडिंग देता है और यहाँ पे ये ऑक्शनर जो रहता है, जो ऑक्शन करवा रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन या तो 1 2 3 चिल्लाएगा या तो फिर एक टेबल पे हैमर 3 बार मारेगा एंड द मोमेंट ही स्ट्रक दैट हैमर ऑन दैट टेबल फॉर द थर्ड टाइम, it is assumed that the contract has been entered and the bidding has been accepted by that particular auctioneer. This is how that auction carried out. Now, what are the rules and what should not be done in the case of an auction? We will see to it. First, before moving to this particular topic,
let's try to understand the important words in the case of an auction. First one is a bidding, that is bid. What is a bid? It says the offer of a price from a person participating in an auction. Bid क्या होता है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑक्शन के अंदर, वो प्रोडक्ट को देख के उसका बिडिंग लगाते हैं, यानी प्राइस कोट करते हैं कि हम ये पर्टिकुलर चीज का इतना प्राइस देने के लिए तैयार है. तो दैट पर्टिकुलर प्राइस कोटेड बाय दैट बिडर, द पार्टिसिपेंट, इज कॉल्ड एज अ बिड. सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म अंडर दिस इज बिडर. बिडर कौन होता है? ऑब्वियसली जो बिडिंग लगाता है उसको आप बिडर बोलते हैं, यानी जो उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और जो उस प्रोडक्ट का प्राइस कोट करेगा, बताएगा कि मैं इतना प्राइस देने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे पर्सन को यू विल कॉल एज अ बिडर. द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑक्शन एंड मेकिंग बिड इज कॉल्ड एज अ बिडर. थर्ड वन इज पफर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज अ पफर? यहां पे क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेलर जो अपनी चीज ऑक्शन में बेच रहा है और वो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को, उसका एजेंट या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को अमंग द पार्टिसिपेंट अपॉइंट करता है, यानी सपोज यहाँ पे ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड में जो पर्दा लगा है, वॉट एवर, आई मीन दिस वॉट एवर, this is a product, I could say that okay, this is a product which I want to sell in an auction. ये प्रोडक्ट को मुझे बेचना है, ये एंटीक चीज है. अब I want that, ये for example this is a diamond which I want to sell in an auction. Now I want that कि ये डायमंड पब्लिक, ये डायमंड का मुझे हाईएस्ट प्राइस मिले. तो हाईएस्ट प्राइस कब मिलेगा? जब पार्टिसिपेंट इस पर्टिकुलर डायमंड का बिडिंग बढ़ाते जाएंगे. तो इन दैट केस आई एम गोइंग टू रिसीव द हाईएस्ट प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर डायमंड. तो मैं क्या करता हूं, एक पर्सन को अपॉइंट करता हूं जिसे बोला जाता है पफर. वो पफर का क्या काम रहता है कि ये पर्टिकुलर डायमंड का जहां पे उसे लग रहा है कि बिडिंग स्टॉप हो गई, यानी पर्सन ने ऑफर दिया और अब स्टॉप हो गया, अब आगे कोई भी ऑफर नहीं दे रहा है, तो ये पफर क्या करता है, बाकी लोगों को पता नहीं रहता है कि ये पफर है, इज एन एजेंट अपॉइंटेड बाय द सेलर हिमसेल्फ. जहां पे बिडिंग स्टॉप हो रही है, यानी बिडिंग लोग कोई ऑफर अब आगे नहीं दे रहे, ये डायमंड को मिस्टर एक्स ने चिल्लाया कि 2 लाख रुपीस, मिस्टर वाई ने चिल्लाया 3 लाख रुपीस, जेड ने चिल्लाया 4 लाख रुपीस. अब ये पफर क्या करता है, ये देखता है कि 4 लाख रुपए पे आके ये डायमंड का प्राइस स्टॉप हो गया है, तो ही विल इंक्रीज द प्राइस. बाकी लोगों को क्या लगता है कि ही इज वन ऑफ देम, वो ये डायमंड को 7 लाख रुपए ऐसा बोल के चिल्लाएगा. तो यहां पे क्या होता है कि ही ट्राई टू स्टिमुलेट द अदर पर्सन. बाकी लोगों को क्या लगने लग जाता है कि 4 लाख से 7 लाख रुपए ये पफर चिल्ला रहा है, बाकी लोगों को पता नहीं है कि वो पफर है, वो सेलर का ही एक एजेंट है. वो लोग तो क्या समझेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन वन अमंग देम है और वो ये डायमंड के 7 लाख रुपीज ऑफर कर रहा है. तो उनके मन में एक लालच क्रिएट होगा. दे विल फील दैट कि कुछ ना कुछ तो ये डायमंड में है, दैट इज द रीजन ही इज ऑफरिंग 7 लाख. तो दे विल ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज द बिडिंग. तो ये पर्सन जो प्रिटेंडेड बिडिंग करता है, जो एक्चुअल बिडिंग, वो सिर्फ काय के लिए बिडिंग कर रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज सपोज टू बी सेल इन दैट ऑक्शन. तो ऐसे पर्सन को यू कॉल इट एज अ पफर. आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो अनलॉफुल है. पफर के बारे में क्या बोला इधर, इट refers to a person appointed by the seller to bid on the property solely for the purpose of stimulating genuine buyer at an auction sale. Stimulating यानी what is an objective of that puffer is to increase the price, और सामने वाले बायर को उचकाने का उसका काम है.
अदर बायर्स को क्या लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए ये बायर उसकी ज्यादा प्राइस दे रहा है, तो ही ट्राई टू स्टिमुलेट द अदर बायर. A puffer attend an auction by an arrangement with the vendor to bid and raise the price, also known as buy bidder, white bonnet or decoy ducks. These are generally asked in the examination. Puffer is also called as a white bonnet, buy bidder, decoy ducks. यानी इसका क्या काम है, वो सिर्फ वो परचेज करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसको सेलर ने अपॉइंट किया है कि सिर्फ आप प्राइस बढ़ाते जाओ, उचकाते जाओ दूसरे बिडर्स को. नेक्स्ट इज रिट्रैक्शन ऑफ बिड. रिट्रैक्शन ऑफ बिड इज वेरी सिंपल. जहां पे आप एक ऑफर देते हो, बिडर एक ऑफर देता है, बिडिंग बोलता है और उसको लगता है कि बिडिंग उसने गलत बोल दी, 5,000 रुपए के बदले में उसने 50,000 रुपए चिल्ला दिया, या फिर 5,000 के बदले में उसने 10,000 रुपीज बोल दिया. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस ही इज एंटाइटल्ड टू रिट्रैक्ट यानी विड्रॉ. वो अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, बट बिफोर एक्सेप्टेंस. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि ऑफर कैन बी विड्रॉन बिफोर एक्सेप्टेंस. तो बिडर जो बिड लगाता है दैट इज एन ऑफर, तो वो अगर गलत बिडिंग लगा दी तो वो उससे रिट्रैक्ट कर सकता है, पीछे हट सकता है, विड्रॉ कर सकता है बिफोर सामने वाला ऑक्शनर उसके बिड को एक्सेप्ट करे. यानी 3 बार हैमर मारने के पहले सामने वाला अगर ऑफर बिडर बोल देता है कि गलत हो गया, मैं अपने बिड को विड्रॉ कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिट्रैक्शन. देन देयर इज अ रिजर्व और अपसेट प्राइस. रिजर्व प्राइस, अपसेट प्राइस यानी कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को लोन दिया है और बैंक ने सपोज रॉयल एनफील्ड के लिए एक लोन दिया है और बैंक ने मिस्टर एक्स को रॉयल एनफील्ड परचेस करने के लिए 1,50,000 रुपीज दिया और मिस्टर एक्स ने 3 इंस्टॉलमेंट भरे और बाकी के इंस्टॉलमेंट वो नहीं भर पा रहा है. तो बैंक क्या करेगा, वो रॉयल एनफील्ड जो गाड़ी है उसका ऑक्शन करेगा. बैंक का अभी कितना पैसा बकाया है, फॉर एग्जांपल बैंक का 1,38,000 रुपीज अभी भी बैलेंस रिकवर करना बाकी है. तो बैंक कभी भी क्या चाहेगा कि उनका पूरा पैसा रिकवर हो, क्योंकि 1.5 लाख की गाड़ी थी, 1.5 लाख रुपए फाइनेंस किया था बैंक ने उस गाड़ी पे. गाड़ी तो कितने की भी हो सकती है, लेकिन बैंक ने मिस्टर एक्स को रॉयल एनफील्ड परचेस करने के लिए 1,50,000 रुपीज दिए थे. सामने वाले बायर ने सिर्फ उसमें अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट में 12,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, अभी भी 1,38,000 रुपीज बैलेंस रिकवरेबल है. तो बैंक क्या करेगा, बैंक विल ऑलवेज ट्राई टू रिकवर द बैलेंस अमाउंट. बैलेंस अमाउंट यहाँ पे क्या है, 1,38,000. तो बैंक क्या बोलेगा बिडर्स को कि ये रॉयल एनफील्ड की बिडिंग 1,38,000 के ऊपर स्टार्ट होनी चाहिए. ताकि क्यों, क्योंकि 1,38,000 मिनिमम अमाउंट है जो बैंक को रिकवर करना है. उसके ऊपर अगर बिडिंग आती है तो वेल एंड गुड, द एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर बायर. वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर बोरोवर जिसकी वो गाड़ी थी. अब अगर सपोज वहां पे 1,38,000 का मिनिमम प्राइस विच इज कॉल्ड एज अ रिजर्व प्राइस नहीं रखते, तो बिडिंग में स्टार्ट विद एनी अमाउंट. पर्सन विल से दैट आई एम गोइंग टू पे ₹10,000, समवन विल से ₹15,000 और फिर वहां पे बिडिंग स्टॉप हो जाए. तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस द पर्पज ऑफ ऑक्शन विल नॉट बी सॉल्व. The purpose of auction was to recover the balance amount of 1,38,000. तो बैंक क्या बोलता है कि बैंक बोलता है कि ये पर्टिकुलर रॉयल एनफील्ड का 1,38,000 से ऑक्शन स्टार्ट होगा, उसके आगे फिर आप बिडिंग लगाओ. यानी मिनिमम अगर एक पर्सन भी उसका बिडिंग लगाता है तो 1,38,000 से ही चालू करेगा. इस केस में क्या होगा, बैंक विल एबल टू रिकवर द लोन अमाउंट. So that particular minimum price that is quoted by the auctioneer is called as a reserve price or a upset price. What it has been said, it is the lowest price at which a seller is willing to sell an item. If at the close of the auction the bidder have not met the reserve price, the seller is not obliged to sell. There is every possibility that कि अगर उसका reserve price सामने वाले ऑक्शनर को नहीं मिलता है तो he may refuse to sell. वैसे भी क्या होता है कि सामने वाला ऑक्शनर is on the acceptor side, bidder is an offerer side. Bidder ऑफर देगा और ऑक्शनर को हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे.
प्रिटेंडेड बिडिंग मैंने अभी बताया आपको, प्रिटेंडिंग बिडिंग जो पफर लगाता है अननेसेसरी, कोई भी बिडिंग में मतलब नहीं है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो एक एजेंट है सेलर का, वो सिर्फ प्राइस बढ़ाने के लिए कि दूसरे लोग उसका प्राइस बढ़ाए तो बीच में से चिल्लाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रिटेंडेड बिडिंग। नेक्स्ट, डैम्पिंग। नाउ व्हाट इज एन डैम्पिंग? डैम्पिंग इज एन एक्ट वेयर सामने वाले बिडर को आप उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से उसको वो पार्टिसिपेट ना करे ऐसे हटकंडे आप अपना रहे हो, उसका किडनैप कर ले रहे हो, या उसको दूसरी जगह लेके चल जा रहे हो, या फिर उसको डिस्करेज कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट परचेज ना करे बाय सेइंग टू दैट बायर दैट कि इसमें तो डिफेक्ट है, क्यों ले रहे हो, ये डिफेक्टिव माल है। एंड विथ ऑल दिस यू वांट दैट पर्टिकुलर बिडर शुड नॉट बिड एट द ऑक्शन, या फिर वो बिडिंग ना लगाए या ना आए ऑप्शन के अंदर, तो ऐसे एक्ट को डैम्पिंग बोलते हैं। इट इज एन इलीगल एक्ट। डैम्पिंग, इट इज एन अनलॉफुल एक्ट बाय विच एन इंटेंडिंग परचेजर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बिडिंग और रेजिंग द प्राइस एट एन ऑक्शन सेल. It is done by way of by pointing out a defect in the goods put at the auction, or by taking the intending buyer away from the place of auction by some other device. उसको कहीं दूसरी जगह लेके चल जा रहे हो, उसका आप किडनैप कर ले रहे हो, तो आप ऐसे एक्ट को आप बोलते हो डैम्पिंग. लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अंडर दिस इज अ नॉकआउट एग्रीमेंट. नॉकआउट एग्रीमेंट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल विल फॉर्म अ ग्रुप. उसमें 8 या 10 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें से 3-4 लोग जिसका माइंडसेट मिलता है, दे विल से दैट कि अपन एक ग्रुप बना लेते हैं. अपने बीच में कंपटीशन करके कोई मतलब नहीं है. मैं एक प्राइस चिल्लाऊंगा, उसके ऊपर आप प्राइस चिल्लाओगे, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ लॉस विद इन अवरसेल्फ. तो व्हाई डोंट वी मेक अ ग्रुप और अपन मिलके इसका बिडिंग लगाते, ताकि अपने बीच में कोई कंपटीशन ना हो, और वो चीज अगर अपने को मिलती है तो we will sell, and whatever price is realized that will be shared among all of us. So such kind of a group is called as a knockout agreement. What it is called? It is form of combination of buyer to prevent competition among themselves at an auction sale. They agree that they will not raise the bid against each other. Only one of them will bid at the auction. When the goods have been purchased, they will share the profit or proceed as the case may be. एंड अगर उनको गुड्स मिलते हैं तो वो बेचेंगे, और उससे जो भी पैसा आएगा वो आपस में बांट लेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ, उन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज अ नॉकआउट एग्रीमेंट. नाउ विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स अंडर दिस. व्हाट इट सेज, द पर्सन कैरिंग आउट द ऑक्शन is called as an auctioneer. He is the agent of the seller, so all the rules of law of agency apply to them. जनरली क्या होता है कि सेलर एक एजेंट को अपॉइंट करता है जो ये पूरा तामझाम करता है, ये पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करता है. तो ऐसे पर्सन को यू कॉल इट एज एन ऑक्शनियर. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट सेलर में हिमसेल्फ वर्क एज एन ऑक्शनियर. दैट मीन्स प्रिंसिपल हिमसेल्फ विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्शनियर, or he may appoint some other person, and that other person may be called as an auctioneer, and for him the law of agency will be applied. यानी जहां पे उसके हर एक्टिविटी के लिए प्रिंसिपल will be responsible. But if the auctioneer wishes to sell his own property as the principal, he can do so, and he did not disclose this fact. It is not a requirement under law. वो पर्सन को सामने बताने की जरूरत नहीं है कि वो खुद प्रिंसिपल है या he is an agent. The person who is selling the goods in an auction will be called as an auctioneer. Simple. The auctioneer as agent for the seller invite person to present to bid for the goods sold. Auctioneer act is a dual capacity act as an agent of the seller till the article is knocked down to the bidder, and till the point of sale he is working as an agent of the seller. एक बार goods बिक गए तो he will work for the buyer. That means he is also going to work for the buyer. Subsequently he act as an agent of the buyer. Now what are the rules as regards to the auction sale? Where the goods are put up for sale in lot. अगर एक ऑक्शन में n नंबर ऑफ चीजें हैं, जैसे एक फैक्ट्री का ऑक्शन हो रहा है, तो उस केस में कंप्यूटर्स भी रहेगा, फर्नीचर भी रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी भी रहेगा. तो देयर विल बी डिफरेंट आइटम इन दैट पर्टिकुलर ऑक्शन. तो हर एक चीज के लिए एक सेपरेट एग्रीमेंट बनेगा.
हालांकि इवन अगर एक ही पर्सन ने सभी चीज परचेस किए तो भी हर एक प्रोडक्ट के लिए देयर आर 10 मशीनरीज, एवरी मशीनरी हैज बीन पुट इन ऑक्शन, तो हर एक मशीन का एक सेपरेट लॉट माना जाएगा और हर एक मशीन का एग्रीमेंट सेपरेट बनेगा. दैट मीन बी ऑल एग्रीमेंट विल बी सीवियर्ड सेपरेट फ्रॉम वन एंड अनदर. अगर उसमें से एक पर्टिकुलर मशीन इलीगल तरीके से हासिल की थी जो आपने बिडर को सेल कर दी, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी इलीगल एंड अनदर लॉट विच यू हैव सोल्ड, अनदर एग्रीमेंट विल बी वैलिड. तो इन द केस ऑफ एन ऑक्शन सेल एवरी लॉट विल बी अ सेपरेट एग्रीमेंट, हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट एग्रीमेंट बनेगा. What it says, where the goods are put up for sale in lot, they are deemed to be sold in lot. Each lot is a prima facie deemed to be subject to a separate contract of sale. हर एक लॉट के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए there will be a separate agreement. The sale is complete and the ownership is transferred when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer or any other customary manner. कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? जब 3 बार हैमर वो अपने टेबल पे पटकेगा ऑक्शनर, या फिर वो 1 2 3 चिल्लाएगा या एनी अदर मैनर. तो द मोमेंट वो हैमर 3 बार वो पटकेगा वो टेबल के ऊपर, इट विल बी अज्यूम दैट एक पर्टिकुलर बिडर का बिडिंग सामने वाले ऑक्शनर ने एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रोडक्ट वो बिडर को अब सेल हो गया है. बिडर में रिट्रैक्ट हिज बिड एनी टाइम बिफोर द ऑक्शन सेल इज कंप्लीट. आई टोल्ड यू दैट कि अगर सामने वाले बिडर को लगता है कि उसने गलती से रॉन्ग बिडिंग कर दिया, रॉन्ग प्राइस कोट कर दिया, तो इज एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ द बिडिंग बट बिफोर एक्सेप्टेंस. द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व प्राइस और अपसेट प्राइस. व्हेन द सेल इज नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व प्राइस, द बिडिंग एंड नोकिंग डाउन ऑफ द आर्टिकल टू द हाईएस्ट बिडर आर सब्जेक्ट टू द कंडीशन द रिजर्व प्राइस शुड बी रीच. मैंने बोला कि रिजर्व प्राइस क्या होता है? मिनिमम प्राइस विच शुड बी रिसीव बाय द ऑक्शनर. अगर वो प्राइस रिसीव नहीं होता है तो इज एंटाइटल्ड टू कैंसल दैट पर्टिकुलर बिडिंग फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इफ द सेलर मेक्स अ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है? मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पफर जो वहां पे बीच में खड़ा होकर प्राइस चिल्लाता है, उसको लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस बढ़ाने का काम कर रहा है और सामने वाला बायर उसके चंगुल में फंस जाता है. सामने वाला जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर मैंने सेल करने के लिए निकाला जिसको एक बिडर ने चिल्लाया 10,000 रुपीज, एक पफर ने प्रिटेंडिंग बिडिंग दिया 20,000 रुपीज. तो एक मिस्टर राहुल जो ऑक्शन में है, उन्हें लग रहा है कि यार कंप्यूटर में कुछ तो बात है, जब तो ये 20,000 ऑफर कर रहा है. वो बोलता है 40,000 रुपये और वैसे ही मैं उस 40,000 रुपये को 1 2 3 बोल के वो 40,000 रुपये एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ हुआ क्या कि वो बेचारा मिस्टर राहुल ये पफर और ये ऑक्शनर की मिली भगत में फंस गया है. तो बोल रहा है अगर ऐसा उसके साथ चीटिंग होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. वो राहुल कैन अवॉइड दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन से दैट उसको फंसाया गया है. A right to bid may be reserved expressly by or on the behalf of the seller, and when such right is expressly so reserved but not otherwise, the seller or any other person on his behalf may bid at the auction. सेलर क्या अपने ही खुद के आदमी को ऑक्शन सेल में बिठा सकता है? बिल्कुल बिठा सकता है. वो भी ऑक्शन कर सकता है. कभी कभी क्या होता है, अपन बोलते हैं ये मेरे बाप दादा के जमाने की जमीन है, आई डोंट वांट दैट कि इसका ऑक्शन हो. अगर ऑक्शन हो भी रहा तो मैं चाहता हूं कि वो मैं ही परचेस करूं, तो मैं अपने कोई रिश्तेदार को ऑक्शन सेल के अंदर बिठा सकता हूं और वो भी सिमिलर टू अदर बिडर वो भी बिडिंग कर सकता है. लेकिन इसका नॉलेज मुझे सभी अदर बिडर्स को देना पड़ेगा. सामने वाले सभी पार्टिसिपेंट को ये बताना पड़ेगा कि ये मिस्टर रायचंदे मेरे रिश्तेदार है जो आपके बीच में बैठे हैं और वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो अगर मैंने ऐसा सभी बिडर्स को, सभी पार्टिसिपेंट को बताया है तो चलेगा और वो रायचंदे से भी बिडिंग एक्सेप्ट की जा सकती है. लेकिन अगर रायचंदे एज अ पफर काम कर रहा है, मैंने किसी को बताया नहीं, नॉट एज अ पफर काम कर रहा है, मगर मैंने उसको अपॉइंट कर उसको बिठा दिया और बोल दिया उसके कान में कि तू बिडिंग लगाना, मैं इमीडिएटली 1 2 3 चिल्ला दूंगा, यानी सामने वाले दूसरे बिडर को चांस ही नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चीटिंग कर रहे हो.
ऑक्शनर ने मिस्टर रायचंदे को बिठाया, एक पर्टिकुलर मिस्टर राहुल ने बिडिंग लगाई वो प्रॉपर्टी की 1 लाख। रायचंदे ने बोला 1,05,000, मैंने दूसरे बिडर को चांस ही नहीं दिया, 1,05,000, 1, 2, 3, और यहाँ पे वो बिडिंग को कंप्लीट कर दिया। यानी ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्लॉट या गुड्स या वॉट एवर प्रोडक्ट इज देयर, मैंने किसको बेच दिया? रायचंदे को। यहाँ पे मेरी और वो रायचंदे की मिली भगत से, और रायचंदे कौन था? सेलर का ही एजेंट था। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर रायचंदे को आप अपॉइंट कर रहे हैं, कोई रिलेटिव्स को या उसके सेलर के एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, तो बाकी सभी बिडर्स को आपको बताना पड़ेगा कि ये भी बिडिंग लगाएगा। Implied warranties in an auction sale. In an auction sale, the auctioneer warrants the following: that he has an authority to sell. That means it is implied that के जो भी auctioneer अपॉइंट हुआ है वो प्रिंसिपल के अथॉरिटी से अपॉइंट हुआ है। He is not aware of any defect in the title of the principal, क्योंकि प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो तो सिर्फ एक एजेंट काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट ऑक्शन में बिक रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट का लीगल टाइटल प्रिंसिपल के पास है या नहीं। तो उसको अपॉइंट किया है, वो सिर्फ उसका काम कर रहा है। अगर टाइटल गलत निकलता है तो प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा, एजेंट जिम्मेदार नहीं रहेगा, ऑक्शनर जिम्मेदार नहीं रहेगा। He undertakes to hand over the quiet possession of the good as soon as the price is paid to him. जैसे ही हाईएस्ट बिडिंग मिल जाएगा, उसका क्या काम है कि वो उस गुड्स का, जो भी गुड्स पे सामने वाले ने बिडिंग लगाया, बराबर उसके पोजीशन में ले जाके दे, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एबल टू एंजॉय द क्वाइट पोजीशन ऑफ दैट गुड्स। किसी थर्ड पार्टी ने आके फिर उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। इम्प्लाइड वारंटी में पहला ही केस था, बराबर है। वहां पे क्या बोला गया था? वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन इन द सेम मैनर, कि अगर किसी बिडर ने हाईएस्ट प्राइस दिया है तो उसको वो चीज देनी पड़ेगी, एंड उसको फिर बाद में कोई भी थर्ड पार्टी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लास्ट टॉपिक अंडर दिस इज इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 64A। दैट इज वेरी सिंपल। इसमें क्या बोला गया है कि जनरली सेल ऑफ गुड्स में कौन से टैक्सेस लगते हैं। अगर आप कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से मंगा रहे हो तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लगती है, और विद इन इंडिया अगर आप कोई गुड्स को सेल कर रहे हो तो उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो वो बोल रहा है कि अगर ये टैक्सेस में कोई आपने गुड्स बेचा, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हुआ है कि आप इतना पैसा दोगे और मैं आपको ये गुड्स दूंगा, और उस पर 18% GST लगेगा, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, मैं डिलीवरी आपको 1 महीने बाद देने वाला हूँ। हो सकता है कि आपने मुझे आज पैसा दे दिया, ये भी हो सकता है कि आप पेमेंट मुझे आफ्टर 1 मंथ देने वाले हो जब मैं आपको गुड्स की डिलीवरी दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट X वैल्यू ऑफ दैट गुड्स इज ₹1 लाख, 18% GST इज 18,000 रुपीज। आफ्टर 1 मंथ, टुडे इज 19th अगस्त, मैं 19th सितंबर को आपको ये गुड्स 1,18,000 रुपीज में दूंगा। बेसिक वैल्यू 1 लाख, 18% GST, 1,18,000 में आपको दूंगा। आपने 1,18,000 रुपए मुझे आज दे दिए, या हो सकता है आप मुझे 1 महीने बाद दो, लेकिन टर्म्स हैव बीन डिसाइडेड एज ऑन टुडे। अब इस सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ जब मैं गुड्स आपको देने जा रहा हूं तो उस डेट पे टैक्सेस का रेट चेंज हो गया। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट के 18% से टैक्स रेट में बिकम 28%, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट के टैक्स में गेट रिड्यूस, 18% से वो 5% पे आ जाए। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी फॉर दिस। तो दिस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर दिस सेक्शन 64A. व्हाट इट सेज, where after a contract has been made but before it has been performed, that means before the goods have been delivered, tax revision tax takes place, यानी टैक्स कम या ज्यादा हो जा रहा है, उसका रेट कम ज्यादा हो जा रहा है। where tax has been imposed, increase, decrease, remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of tax, the party would become entitled to read just the price of the goods accordingly. यानी गुड्स अभी तक दिए नहीं है, प्राइस डिसाइड हो गई है 1 लाख प्लस 18% टैक्स, और उसमें टैक्स के बारे में कम ज्यादा होता है, ऐसा कोई स्टिपुलेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो लॉ ऐसा बोलता है कि अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है लेकिन आपका कुछ डिसाइडेड नहीं था, अगर 18% से 28% हो जाता है
तो बायर विल बी लायबल टू पे अकॉर्डिंगली 1,28,000। लेकिन अगर टैक्स कम हो जाता है, अगर 18% से टैक्स रेट हो जाता है 5,000 रुपीज और प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं था, तो इन दैट केस द बायर विल बी एंटाइटल्ड टू पे ओनली 1,05,000। इन द फर्स्ट केस, इफ द अमाउंट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 18 to 28, buyer will be liable to pay 1,28,000. Whereas if the tax rate has been reduced from 18 to 5%, then the buyer will be entitled to pay not 1,18,000 but 1,05,000. यानी उसका बेनिफिट या नुकसान जो भी है, टैक्स बढ़ जाता है तो नुकसान, टैक्स कम हो जाता है तो फायदा, ये दोनों किसको बेयर करना पड़ेगा? बायर को। Following taxes are applied on the sale or purchase of good, any duty or custom or excise on goods, any taxes on sale or purchase of goods. एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था, अब वो एबॉलिश हो गया है। एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली गुड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं उस पे लगता था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे भी जीएसटी लगता है। द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस where the tax increases and may derive the benefit of reduction if the tax are curtailed, that is reduced. Thus, seller may add the increased taxes in the price. The effect of provision can, however, be excluded by an agreement to the contrary. It is open to the parties to stipulate anything regarding the taxation. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बायर और सेलर इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं जिसमें लिखा होता है कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका क्वांटम बायर के ऊपर नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो दैट बर्डन विल बी बोर्न बाय द सेलर, या इवन इफ टैक्स रिड्यूस हो जाता है तो उसका बेनिफिट बायर को नहीं मिलेगा। जो भी होगा वो सेलर बेयर करेगा या सेलर बेनिफिट लेगा। द प्राइस हैज बीन फिक्स, यानी आज अगर प्राइस फिक्स हुआ है कि 1,18,000 तो आपको 1,18,000 ही देना है, दो द टैक्स हैज बीन इंक्रीज टू 28%, बट स्टिल द बायर विल पे 1,18,000। और इवन इफ द प्राइस हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 1,18,000 to 1,05,000, दैट इज टैक्स रेट हैज बीन रिड्यूस, इन दैट केस ऑल्सो, जस्ट अ मोमेंट, in that case also the benefit will not be borne by the buyer. वहां पे बायर को 1,18,000 रुपए ही देना पड़ेंगे। तो ये कब होगा? अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिसाइडेड है तो। अदरवाइज द बेनिफिट एंड लॉस both has to be borne by the buyer. If the tax rate has been reduced, the benefit will be to the buyer, and if the tax rate has been increased, the loss has to be borne by the buyer. So this is a concept of tax in the case of goods, so sale or purchase. So these are the things as regards to the rights of the buyer in case of breach by the seller and the concept of auction sale. I hope you have understood the concept. This was the last unit under this particular chapter. Next chapter will be for partnership. Bye everyone.